بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے لیے مزید مشکلات۔ نیب نے ٹی ٹی اسکینڈل میں مرکزی ملزم علی احمد کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا۔ نیب ذرائع کے مطابق علی احمد شہباز شریف ٹی ٹی اسکینڈل کیس میں اہم ملزم ہے۔ علی احمد ٹی ٹی اسکینڈل میں نیب کو 2 سال سے مطلوب تھا۔ علی احمد شہباز شریف دور میں سی ایم ہاؤس میں تعینات تھا۔ نمائندہ نیوز محمد اویس ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اویس بتائے گا تحقیقات میں مزید کیا بات سامنے آئی؟ جی بالکل، نیب نے ٹی ٹی اسکینڈل میں 2 سال سے مطلوب مرکزی ملزم علی احمد کو اسلام آباد سے گرفتار کیا ہے۔ ملزم علی احمد کو کل اسلام آباد کے احتساب عدالت میں راہداری ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ نیب کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ علی احمد جو ہے وہ مین مرکزی کردار ہیں ٹی ٹی اسکینڈل میں۔ ان کے ذریعے جو ٹرانزیکشنز ہوئی وہ ان کے ذریعے ہوتی رہیں، اور اس وقت جو یہ تھے یہ سی ایم ہاؤس میں تعینات تھے۔ لاہور نیب ٹیم نے آج اسلام آباد میں خفیہ اطلاعات پر چھاپہ مارا ہے۔ نجی ہوٹل سے جیسے ہی یہ باہر نکلے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے، آج رات ان کو اسلام آباد نیب ہیڈ کوارٹرز میں وہاں پر منتقل کیا جائے گا۔ کل صبح راہداری ریمانڈ کے لیے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ محمد اویس، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کپتان کے اپوزیشن کو دھواں دار باؤنسرز کہتے ہیں حکومت کی بہترین پرفارمنس۔ اپوزیشن کو سیاسی دکانداری ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ لندن میں اربوں کی جائیداد خریدنے کے لیے پیسہ پاکستان سے چوری ہو کر گیا۔ للہ جیلم روڈ کیریج وے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہا، لندن میں بیٹھے سیاستدان مہنگے ترین فلیٹس کا ایک ثبوت تک پیش نہ کر سکے۔ نام لیے بغیر وزیر اعظم کے نواز شریف پر تاک تاک کر وار۔ کہا، لندن میں بیٹھا ایک شخص آج کل بہت دکھی ہے۔ لندن میں بیٹھے شخص کو دکھ ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ لندن میں بیٹھا شخص خود کو شیر شاہ سوری بھی کہتا تھا۔ لندن کے اندر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں، یہ سارا یہاں سے پیسہ گیا ہوا، جو آج تک یہ نہیں بتا سکتے کہ جو 4 اربوں روپے کی آپ نے فلیٹس لیے ہوئے لندن میں، ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آئے، کیونکہ یہاں سے گیا چوری کا پیسہ۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جس دن سے ہم آئے ہیں کہتے جی گورنمنٹ کو گرا دو، آج گئی تو کل گئی، پرسوں گئی۔ وہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 5 سال کے بعد انشاءاللہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی، ان کو خطرہ ہے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ انوگریشن کیا ہاتھ رکھ کے، تو میں حیران ہوں کہ یہ جو اپوزیشن ساری یہ ٹیکنالوجی کا کیوں نہیں ووٹنگ کے اوپر استعمال کر رکے ہوئے۔ حیرت ہے کہ ہماری اپوزیشن کو پتہ نہیں اس پہ کیا پرابلم آ رہی ہے، مشین سے ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس چیز سے۔ آیا گیا کہ جناب بڑے ہمارے دور سے پہلے سڑکیں بنی ہوئی، جو آج کل لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دکھ ہزار کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے حالات بہت برے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو شیر شاہ سوری بھی کہتے تھے سڑکوں بنانے کے۔ نون لیگ کے 3 سالوں میں 645 کلومیٹر سڑک بنائی، تحریک انصاف کے 3 سالوں میں 1750 کلومیٹر سڑک بنائی، 2013 میں 21 میں ہر چیز میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیان حلفی نوٹس کیس میں باقاعدہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم اخبار مالک ایڈیٹر اور رپورٹر کو شوکاس نوٹسز جاری کر کے 7 روز میں جواب طلب کر لیا گیا۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ 3 سال بعد اچانک بیان حلفی آ گیا، تاثر ہے بیان حلفی جعلی ہے، ثابت ہونے پر جج کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی میں تاخیر نہیں ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ یہ پورے جوڈیشل سسٹم اور بالخصوص ہائی کورٹ پر الزام ہے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں، اس کے بعد بہت سنجیدہ نتائج ہوں گے۔ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق خبر پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے کہا، رانا شمیم کی جگہ ان کے بیٹے پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ ان کے والد رانا شمیم کی طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن وہ پیش ہونا چاہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا، رانا شمیم کے بھائی کا 6 نومبر کو انتقال ہوا، مگر وہ اس کے بعد لندن گئے۔ رانا شمیم کے پاس بھائی کی فوتگی میں جانے اور عدالت آنے کے لیے وقت نہیں، لیکن لندن جانے کا وقت ہے۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے، سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، یہ تاثر ہے کہ یہ بیان حلفی جعلی ہے۔ عدالت نے صحافی انصار عباسی سے استفسار کیا، اس حلف نامے کا کوئی عدالتی ریکارڈ نہیں، کب سزا ہوئی اور کب اپیلیں دائر کی گئیں، کون سا جج چھٹیوں پر ملک سے باہر تھا۔ عدالت کے 2 بینچز نے 1 سال تک کارروائی چلائی، کیا یہ تمام ریکارڈ رجسٹرار سے چیک کیا؟ صحافی انصار عباسی نے موقف اپنایا، جو کیا وہ سب عدالت کی عزت کے لیے کیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ نے عدالت کی عزت نہیں
नहीं की। आपने इस अदालत पर उंगली उठाई और मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ स्टोरी की। खबर में जज का नाम ना लिखकर पूरी अदालत पर सवाल उठा दिया और अदालत को नुकसान पहुंचाया गया। मैं चीफ जस्टिस हूँ, अगर मेरे सामने कोई चीफ जस्टिस साकिब निसार जैसी बात करे तो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाऊंगा। लेकिन साबिक चीफ जज के सामने बात हुई और वो 3 साल तक खामोश रहे। अगर आप और राना शमीम सबूत पेश ना कर सके तो साबिक चीफ जज के खिलाफ भी कार्रवाई करना पड़ी तो करेंगे। इस पर राना शमीम के वकील ने कहा उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए, वो अपना जवाब जमा करा देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। आइंदा समाअत 26 नवंबर को होगी। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम के बेटे अहमद हसन राना का कहना है केस 26 नवंबर तक मुलतवी हो गया है। अगली समाअत पर इंशाअल्लाह राना शमीम जवाब के साथ ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। वालिद अपने बयान हल्फी पर कायम हैं। PTI सेनेटर के इल्ज़ामात पर अहमद हसन राना ने कहा फैसल वाटा ने एक TV शो में ऑल फॉल बोला है, झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि राना शमीम के बेटे को नवाज कर एडवोकेट जनरल बनाया गया है। रिकॉर्ड चेक कर लें, एडवोकेट जनरल कभी नहीं बना। फैसल वाटवा साहब ने कल एक प्रोग्राम में काफ़ी ऑल शॉल बोले और इतना उनको पता भी नहीं, उन्होंने बोल दिया कि उनके बेटे को नवाजा गया था PML नून के दौर में कि उन्हें एडवोकेट जनरल बनाया गया था। मैं कभी भी एडवोकेट जनरल नहीं रहा। हाँ जी, एक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ज़रूर रहा हूँ और 6 महीने मेरा रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वो आप उठा के दे सकते हैं मैंने उधर केसेस में क्या किया है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं तीसरा चौथा जज है जो अपनी गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड कर रहा है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर JUI ने हुकूमत को निशाने पर रखा। कहा हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। चलने और चलाने वाले दोनों को जानते हैं। नाअहल हुक्मरान इक़्तिदार को तूल देने के लिए नाजायज़ तरीके अपना रहे हैं। छोटी पार्टियों को मुश्तरका इजलास में जाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत सब कुछ 19 नवंबर से पहले करना चाहती है। PDM आम आदमी की आवाज़ है। नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ जहाद जारी रहेगा। जाली पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी के लिए तैयार कर रही है कि आइंदा भी इलेक्शन में बड़ी आसानी के साथ वो धांधली कर सके। छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले करना है। सारे मामले को मशकूक बनाता है। आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करें। हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। हुकूमतें चलनी चाहिए आवाम के सहारे से। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रह रहे हैं और हसन नवाज उन्हें डील कर रहे हैं। फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात ने राना शमीम का बयान हल्फी मंजर-ए-आम पर आने को नून लीग की साजिश करार दिया। कहते हैं मरीम नवाज की पेशी से पहले कोई बयान हल्फी या वीडियो रिलीज की जाती है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने जो हल्फनामा दिया उसकी फीस भी शरीफ फैमिली दे रही है। देखें हो ये रहा है, एक सीरीज है। जब भी हम देखते हैं नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की कोई पेशी होती है उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की गढ़ी जाती है, खबर लगाई जाती है, कोई एफिडेविट आता है, किसी की वीडियो रिलीज होती है। ये एक मुकम्मल प्लान के तहत हमेशा हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहा और इसमें कोई शुबह ही नहीं है कि वो लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे के ऊपर जो है वो रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे एफिडेविट दिया, उसकी फीस भी नवाज शरीफ की फैमिली ने अदा की। देखिए ये जो EVM है या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, ये कोई हमारा इमरान खान का या PTI का ज़ाती एजेंडा नहीं है, ये कौमी एजेंडा है। जब भी इलेक्शन होते हैं हम कहते हैं हमें इस्लाहात चाहिए। जब इस्लाहात की तरफ आप जा रहे हैं तो उस वक्त अपोजिशन शोर मचा रही है कि इस्लाहात नहीं होनी चाहिए। मैं अब भी अपोजिशन को ये कहता हूँ कि आज आप बैठे हमारे साथ, कल के इजलास में अपोजिशन इन तमाम तरामीम के ऊपर खुले दिल से गौर करें। हम फिर खुले दिल के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान को मानना पड़ेगा। हल्फनामे को पूरी दुनिया सच मानती है। राना शमीम झूठ बोल रहे हैं तो बदतरीन सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सच बोल रहे हैं तो साकिब निसार को जेल जाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की घन गरज। कहते हैं अगर नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं तो साकिब निसार क्यों नहीं। शहर इक़्तिदार में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि इस केस पर भी अदलिया को अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को फ़ोन किया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो बेल है वो इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए। अगर चीफ जस्टिस अपना नाम क्लियर ना कर सकें
तो कौन इन अदालतों पर यकीन करेगा? आप मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, सफाई दें। कोई आला अदलिया जो एक वज़ीर आज़म को अकामे की फीस ना लेने पर खुद ट्रायल करके निकाल सकती है, अपने चीफ जस्टिस से नहीं पूछ सकती कि तुम इलेक्शन में मुदाखलत क्यों कर रहे थे? आज इस मुल्क की आला अदलिया अदालत में है, मुझे उम्मीद है उनको इसका एहसास हो। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं, जब जब इन्हें अदालतों ने बुलाया ये कोई नया स्कैंडल तराश कर ले आते हैं। अगर ये इतने सच्चे हैं तो फिर मुल्क छोड़कर लंदन में क्यों बैठे हैं? जिस खातून की बात की जा रही है उन साहिबा को ये मशवरा किसने दिया कि वो कहें उनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं? फिर कहते हैं इन्हें हदफ बनाया जा रहा है। मुराद सईद ने कहा, ये समझते थे कि लोग भूल जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि कौम भूलेगी ना ही वो भूलने देंगे। स्पीकर साहब, एक गुजारिश मैं करता हूं, अगर इतने सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं, तो आज भी पूरा टब्बर लंदन में वफरूर और इश्तियारी क्यों बैठा हुआ है? जब भी इनकी तारीख लगती है तो उससे पहले या तो दरखास्त दे के इल्तिवा में डाले चीजें, या हर तारीख से पहले आप इसी किस्म के बयानिया बनाने की कोशिश करें। और ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में चोरी का, करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल और उसमें नवाज शरीफ और उनके खानदान का नाम ना हो? फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा था, मियां साहब फिक्र ना करो, लोग भूल जाएंगे, चंद ही दिनों के बाद की बात है, लोग भूल जाएंगे। इमरान खान ने कहा था कि ना कौम भूलेगी ना मैं बोलने दूंगा। किसने कहा था कि आप पहले कहो कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? फिर आप कैलिबरी फॉन्ट की जालसाजी करो सुप्रीम कोर्ट में, आपके अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की जायदादें सामने आए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी पर आसिफ जरदारी का पुराना जख्म ताज़ा हो गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने पेशी पर सहाफ़ियों के सवाल पर कहा वो पहले ही ये रास्ता देख चुके। जस्टिस कयूम के साथ सैफुर रहमान और कुछ और दोस्तों की टेप थी। साबिक सदर के मुताबिक हुकूमत को लाने वाले अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। अब गलती कैसे सुधरेगी ये अल्लाह जाने। मरीम नवाज के सवाल पर कहा वो उनकी बेटियों जैसी हैं। एहतसाब अदालत ने अमेरिका में प्रॉपर्टी केस में साबिक सदर की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 5 लाख रुपए की मचल के जमा कराने की हिदायत कर दी। हम तो पहले ये रास्ता देख चुके हैं। आपको याद है कि एक टेप थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की, कयूम के साथ, जस्टिस कयूम के साथ, जो उसको लाए हैं वो एडवाइस कर रहे हैं कि गलती होगी, और कैसे करेंगे गलती को दुरुस्त, ये अल्लाह को पता और वो बेटियों जैसी, मैं अपनी बेटियों पर क्या कमेंट करूँ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। एमक्यूएम ने हुकूमत को मुश्तरका पार्लियामेंट इजलास में मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से एमक्यूएम रहनुमा अमीन उल हक और खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म से सेनेटर अली ज़फ़र और वज़ीर कानून फ़रूग नसीम भी मिले। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र का कहना है 20 से ज़ायद कवानीन मुश्तरका इजलास से मंजूर कराएंगे। वज़ीर कानून फ़रूग नसीम का कहना है कानून साजी के लिए इलेक्शन कमीशन की मंजूरी ज़रूरी नहीं, हुकूमत इत्तफ़ाक़ राय से आगे बढ़ना चाहती है। होती है हाईएस्ट रिस्पेक्ट, अगर आप उसकी शिकें देखें तो उन शिकों में कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ मेकिंग के लिए इलेक्शन कमीशन का अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट तो इत्तेफाक राय करना चाहती है और हम नेक नियति से बिल्कुल आगे बढ़े हैं और हमेशा बढ़ते रहेंगे। ऑपोजिशन ने आगे स्टेप क्यों नहीं लिया वो तो वो बताएंगे। कल के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। सहाफ़ी का वज़ीर आज़म से सवाल। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों को जवाब दिया, जब कोई खिलाड़ी मैदान में कदम रखता है तो वो हमेशा समझता है कि वो जीतेगा। एक मिनट रुक जाए सर, एक मिनट रुक जाए। वो जब कदम रखता है ग्राउंड में वो हमेशा समझता वो जीतेगा। थैंक यू सर। माफ़ कर दें, ये मेरी नौकरी है। इलेक्शन कमीशन में पेशी पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और कमीशन अराकीन में दिलचस्प मकालमा हुआ। समाअत के दौरान फवाद चौधरी ने कहा बहुत सारे बयानात उनके नहीं, ये उनकी नौकरी है, जिस पर मेंबर सिंध ने रिमार्क्स दिए कि पहली बार देख रहे हैं, गाली देना भी नौकरी है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को तहरीरी मुआफ़ीनामा देने की हिदायत कर दी। माफ़ी तो नहीं होती, मैं कैसे माफ़ी मांग सकता हूँ? ये तो फिर कैबिनेट को कहेंगे, मैंने तो कैबिनेट की बात की। नोटिस तो आपको था ना, तो मैंने इंडिविजुअल हैसियत में तो कर लिया ना, जो कुछ हो सकता।
चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए अहम सियासी रहनुमाओं के काफिले की क़यादत से राब्ते साबिक सदर आसिफ जरदारी का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन को फ़ोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने भी चौधरी सालिक हुसैन से फ़ोन पर रब्ता किया। मरीम नवाज ने कहा चौधरी शुजात हुसैन को अल्लाह सेहत दे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की। हमजा शहबाज ने चौधरी परवेज़ इलाही MNA चौधरी सालिक हुसैन से अस्पताल में एक खुसूसी मुलाकात की। आगे बढ़ते हैं। जेहलम में 130 मंसूबों पर काम जारी है। मंसूबों पर 82 अरब लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत ने रोड नेटवर्क के मंसूबे पर तवज्जो मरकूज़ की है। पूरे पंजाब में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। शेखुपुरा गुजरांवाला रोड और झंग शोरकोट रोड पर भी काम हो रहा है। सड़कों की तामीर से लोगों को रोज़गार की फराहमी होगी। तमाम स्कीमों की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। जेहलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 103 मंसूबों पर काम जारी है, जिनकी लागत 11 अरब 23 करोड़ रुपए बनती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम 13 मंसूबे करने जा रहे हैं, जिसमें शेखुपुरा गुजरांवाला रोड के ऊपर तेज़ी से काम जारी है। उन इलाकों में जहां ये रोड्स बन रहे हैं, ये नेटवर्क बन रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत उनको सहूलत होगी। और पंजाब हुकूमत को ये भी एजाज़ हासिल है कि इस दफ़ा की हमने जितनी एलोकेशंस की हैं और जितनी स्कीमें आइडेंटिफाई की हैं और जितनी स्पीड के साथ हमने उनके ऊपर काम स्टार्ट कराया, मेरे ख्याल में पंजाब की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा हो रहा है कि इतनी स्पीड के साथ एलोकेशंस और एग्जीक्यूशंस हो रही हैं। ये एजाज़ हुकूमत को पंजाब को जाती है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान पर बरहम। बोले 3 साल खामोश क्यों रहे? राना शमीम के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस होना चाहिए। अपोजिशन वालों को भी आड़े हाथों लिया। बोले अपोजिशन वालों में मुस्ताफ़ी होने की भी अखलाकी जुर्रत नहीं, इदारों पर हमले करते और इल्ज़ाम लगाते हैं। हसन खावर ने पंजाब हुकूमत अपनी आनी मुद्दत पूरी करने का भी कह दिया। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। सबसे पहले तो उसके ऊपर मिसकंडक्ट लगना चाहिए कि तुम 3 साल क्यों चुप रहे। अपोजिशन के ना इस्तीफे देने का हौसला है, इदारों पे तुहमतें लगाते हैं। थर्ड एम्पायर खरीद नहीं पाते तो फिर वो लोगों की किरदार कशी शुरू करते हैं। इत्तेहादियों के साथ उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर कर दिया गया है। तमाम इत्तेहादियों के साथ तमाम मामला तय पा चुके हैं। बच्चों के जो स्कूलों के टाइम है और ऑफिसेज़ के टाइम, उसमें कोई तब्दीली लाई जाए।